Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta, Masters in Law from MLS Bangalore. In this session, I am going to discuss some more legal terms and phrases which will help you to crack your law entrance exam. So first is affiant. Affiant क्या है? Person who you can say who files an affidavit. Person who signs an affidavit or who files an affidavit. अब एफिडेविट क्या है? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट जो आप साइन करते हो, स्वेयर करते हो अंडर द ओथ बिफोर अ नोटरी पब्लिक और समवन ऑथराइज टू टेक दी ओथ्स. इट मीन्स यू कैन से इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें आप साइन करते हो और ये कहते हो कि इस डॉक्यूमेंट में जो स्टेटमेंट्स जो इन्फॉर्मेशन दी गई है दैट इज़ ट्रू टू माई नॉलेज. सो दैट इज़ एफिडेविट. मैंने कहा ना एफाइंट क्या है? पर्सन हु साइंस एन एफिडेविट, पर्सन हु मेक्स एन एफिडेविट, पर्सन हु साइंस एन एफिडेविट. ना एफाइंट डिस्कस करने से पहले विल डिस्कस एफिडेविट. जो एक डॉक्यूमेंट है साइन करते हो और उस डॉक्यूमेंट में आप क्या कह रहे हो कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने दी है इट इज़ ट्रू टू माई नॉलेज. इज इट क्लियर? So, affiant is someone who files an affidavit which is a written statement used as evidence in court. In order to be admissible, affidavits must be notarized by notary public. Is it clear? So, you have done with two legal terms, affiant and affidavit. Is it clear? Next is affirm. Affirm क्या होगा? What do you mean by the term affirm? कि आपका डिसीजन किसी ने, यू कैन से, अगर ले लैंग्वेज में हम बात करें, योर डिसीजन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, कि आपने जो लिया वो किसी ने को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ अफर्म कर लिया. सो अगर आप कोर्ट केस कर रहे हो, आप देयर इज़ सम कोर्ट केस, इज़ इट क्लियर? तो वो कोर्ट केस में क्या है, लोअर कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन दिया और वो हायर कोर्ट में अपील कर रहे हो जब, तो हायर कोर्ट हैज़ has confirmed the lower court's decision, that is affirmed. Is it clear? Next legal term is affirmative action. Now affirmative actions are policies. These are certain policies which are instituted by the government to help level the playing field of those historical disadvantage due to factors such as race, color, religion, sex और national origin. ये जो laws होते हैं affirmative action laws, typically they pertain to equal opportunities in employment, education and business. Is it clear? So, affirmative actions are the policies which are instituted by the government to help level the playing field for those historical disadvantage due to factors such as race, color, religion, sex or national origin. Is it clear? This was your affirm. Now next is affirmative defense. Affirmative defense means something that the defendant says he will prove to defeat or mitigate plaintiff's claim. Is it clear? Or you can say it is an answer to the charge or complaint in which defendant takes offense and responds to the allegations with his or her own charges. It is affirmative defense. Example of affirmative defense, you can say self-defense, insanity, necessity, etc. They are the examples of affirmative defense. Now next is affix. Affix, what do you mean by affix? किसी डॉक्यूमेंट्स के साथ हम कोई और डॉक्यूमेंट लगा देते हैं. एफिक्स, आपने समथिंग अटैच कर दिया किसी चीज़ के साथ, दैट इज़ एफिक्स. अटैच कर दिया, दैट इज़ एफिक्स. Is it clear? So to attach something or to real estate in a permanent way, including planting trees, shrubs, building construct कर दी है, कोई improvements कर दी है, that is affix. जो आपने affix किया है they are permanent, उसको आप पिक नहीं कर सकते.
ठीक है, आपने सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक घर रेंट पे लिया है, यू हैव टेकन इट फॉर सम टाइम। उस घर में एक छोटा सा गार्डन है, यू कैन से लॉन टाइप है। अब वहाँ पे क्या है, जब आपने उस घर में शिफ्ट किया, यू हैव प्लांटेड सम ट्रीज़। एक तो है कि आपने वो फ्लावर पॉट से ले लिया, उसमें किया है, गमले ले लिए जिसको कहोगे, गमले ले लिए, नो नॉट इन दैट, कि आपने अर्थ में कुछ ट्रीज़ प्लांट किए हैं, तो क्या आप वो लेके जा सकते हो साथ में? नहीं, दिस इज़ एफिक्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मीन्स कि जो डेटर एक्वायर करता है, आफ्टर द डेटर एग्रीड, वो जब एग्री करता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी डेट के सिक्योर है, दैट इज़ आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। कि अगर उसकी कोई नई प्रॉपर्टी होगी वो भी सिक्योरिटी बन जाएगी डेट के लिए। इज इट क्लियर? दैट इज़ आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज़ आफ्टर एक्वायर्ड टाइटल। आफ्टर एक्वायर्ड टाइटल मीन्स जब आपको टाइटल कब मिलता है कि ओनर है, ओनर सारा अपने प्रॉपर्टी को सेल करने का सारा अटेम्प्ट करता है, ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे पर्सन को। जब उसको अभी लीगल टाइटल नहीं मिला, उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करता है, तो उसके बाद जो परचेज़र को टाइटल मिल रहा है, दैट इज़ आफ्टर एक्वायर्ड टाइटल। फॉर example, John signs, acknowledges and records a deed of the ranch to Sam, but John has not yet received the title from the estate of his late father. Is it clear? When John gets a title from his father's estate and records it, the after acquired title goes automatically to Sam. Clear? After discovered evidence. आफ्टर डिस्कवर्ड एविडेंस मीन्स एविडेंस एक लूजिंग पार्टी ने, ठीक है, एविडेंस है जो कि लूजिंग पार्टी को मिला है, और वो भी कब मिला? जब ट्रायल ख़त्म हो गया, जजमेंट दी है, उसको हम कहते हैं न्यूली डिस्कवर्ड एविडेंस। और वो इस तरह का एविडेंस है कि पहले वो मिला ही नहीं है, जब ट्रायल चल रहा था उस टाइम मिला ही नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इट मे बी कंसिडर्ड ऑन अ मोशन फॉर न्यू ट्रायल। एज डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, एज डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नाउ एज डिस्क्रिमिनेशन का क्या है आपका, कि जो एम्प्लॉयर है, ही मेक्स अनफेयर टू द पर्सन, जो पोटेंशियल एम्प्लॉई है उसके साथ वो अनफेयर करते हैं। और क्या प्रॉब्लम क्या होती है? ड्यू टू एज डिस्क्रिमिनेशन। इस थिंग के लिए ये जो है कि एज डिस्क्रिमिनेशन के लिए एम्प्लॉयर शुड बी वेयर। बेसिकली दैट इज़ एज डिस्क्रिमिनेशन। नाउ एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट मीन्स कि जहाँ पे पर्सन he is liable for his her own action. Now see, under contract law, contract में क्या है? एग्रीमेंट विद माइनर इज़ void ab initio. सो अब यहाँ पे क्या है कि अगर पर्सन हु इज़ कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन्फोर्सेबल बाय द अदर पार्टी, अगर कोई डैमेजेस हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो कौन लाइबल होगा? एडल्ट लाइबल होगा फॉर दैट purpose. Is it clear? That is age of consent. Now next is agency. Agency में क्या है कि there is a relationship between two persons, principal and agent. So agent है जो, वो principal के behalf पे काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहे हैं। एजेंसी कब क्रिएट होती है? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मीन्स प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, और प्रिंसिपल एजेंट को काम करने के लिए बोल रहा है, एंड ही इज़ एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, एजेंट इज़ एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। नाउ इफ एनी लॉस इज अकर ड्यू टू एजेंट, हु विल बी लाइबल?
ऑब्वियसली प्रिंसिपल लाइबल है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल विल बी लाइबल क्योंकि एजेंट उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। बट यू कैन से प्रोवाइडेड कि जो एजेंट है सिर्फ वही एक्ट कर रहा है जो कि प्रिंसिपल ने बोला था। इज इट क्लियर? ये जो एजेंसी है इट इज़ बेस्ड ऑन वन लीगल फ्रेज दैट इज रिस्पोंडेंट सुपीरियर, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। ठीक है, बेसिक रूल हमारा क्या है कि प्रिंसिपल बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट एंड द एजेंट्स एक्ट्स आर लाइक दोज ऑफ द प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ एजेंसी। एजेंट क्या है, हमने अभी एजेंसी में डिस्कस किया है कि वो पर्सन है जो दूसरे के लिए काम करता है, मीन्स जो कि प्रिंसिपल के लिए काम करते हैं, चाहे बाय कॉन्ट्रैक्ट है, बाय अपेरेंट अथॉरिटी है, और वो उसके एक्ट्स पर हु इज़ बाउंड बाय एजेंट्स एक्ट प्रिंसिपल। नाउ एग्रावेटेड असॉल्ट मीन्स कि आप को कोई अटैक, आप पे कोई अटैक कर रहा है फिज़िकली, बहुत सीरियस बॉडी हार्म है, और वो हार्म आपको, वो नुकसान आपकी बॉडी पे आपको किसी डेंजरस वेपन की वजह से पहुंचाया गया है, कोई गन से, नाइफ से, स्वॉर्ड से, एंड इट इज़ अ सीरियस ऑफेंस एंड पनिश्ड। नेक्स्ट, एग्रीड स्टेटमेंट। एग्रीड स्टेटमेंट में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इट? यहाँ पे जनरली तो दो पार्टीज़ हैं, देर आर टू पार्टीज़ एन ऑपोजिट साइड ऑफ लॉ सूट। वो एग्री करती हैं अपॉन सर्टेन फैक्ट्स, साइंस अ स्टेटमेंट टू बी यूज्ड इन कोर्ट फॉर दैट पर्पस। ठीक है, अग्रीड स्टेटमेंट में क्या है, ओकेजनली दो पार्टीज़ ऑपोजिट साइड के लॉ सूट में एग्री करते हैं कुछ फैक्ट्स और साइन कर देते हैं वो स्टेटमेंट, जो कि वो स्टेटमेंट उन्होंने कोर्ट में यूज़ करनी है फॉर दैट पर्पस। इज इट क्लियर? एग्रीमेंट मीन्स दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनके माइंड्स मीट कर रहे हैं एट द सेम टाइम एंड इन द सेम सेंस। लीगल ऑब्लिगेशन है या नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एग्रीमेंट में कि आपके माइंड्स मीट होने चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एड एंड एबेट। व्हाट डज़ इट मीन? अबेट तो हमने कल भी डिस्कस किया है, सॉरी इन दी लास्ट सेशन भी हमने डिस्कस किया है। तो एड एंड एबेट मीन्स कि हम किसी को क्राइम कमिट करने में हेल्प कर रहे हैं, और यू कैन से हम उसको इंड्यूस कर रहे हैं कि ये क्राइम कमिट करो। एलिएटरी मीन्स जो क्लियर नहीं है, इट इज़ अनसर्टेन। अब क्लियर नहीं, आप ये कह सकते हैं अनसर्टन है कि there is something which is dependent on something. If I say if such and such ship will return within 1 year, I'll pay you 1000 rupees. अब मैं आपको वो 1000 रुपीज़ कब पे करूँगी, किस पे डिपेंड होगा? अगर वो शिप 1 साल में आ गई है। अगर वो 1 साल में नहीं आई है, आई एम नॉट गोइंग टू पे। So you can say it is dependent on this in given example, the payment is dependent on the occurrence of a contingent event. Clear? Next, allies. Allies means कि जो आपका नाम, जो आपका गिवन नेम है, उसको ना यूज़ करते हुए कोई और नाम दे रहे हैं। ये नहीं है कि वो आप उसको अपनी यू आर अटेम्प्टिंग टू हाइड योर आइडेंटिटी, नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर गिविंग यू अनदर नेम, दैट इज़ एलाइज। सो गाइज, टुडे विल वाइंड अप आवर lecture here. In the next session I am going to discuss some more legal terms and phrases. Thank you.